हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों पर कुशल और मंगल होंगे और इन वीडियो लेक्चर से आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे होंगे और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे कि आप IIT JEM, NET JRF या BSc और MSc की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको काफ़ी हेल्प और सपोर्ट मिल रहा होगा। मैं डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ क्वांटम मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। Today we are going to take lecture number 14 on the phase velocity and group velocity for matter waves. Till now we have talked about matter waves and show the de Broglie relation for that. De Broglie relation gives us the wavelength for the matter waves. But in previous lecture we have discussed that we should need more quantities rather than only wavelength to properly describe this wave properties of the particles. And in previous lecture we have introduced a wave function for the matter waves, and we discussed that this wave function played a similar role as the electric fields and magnetic fields play for the light wave, as the pressure play for the sound wave, and the height of water surface play for the water waves. So, and then we have seen that the Max Born in 1926 provided a physical interpretation, or in more precise word, a probabilistic interpretation for the matter waves. So we have studied this of the subject, but now we are going to study further on phase velocity and group velocities for matter waves. So an obvious question come into our mind that what should be the shape and nature of these matter waves. So we are starting from this interesting question. What should be the shape and nature of the matter waves? इनकी प्रकृति और इनका आकार कैसा होना चाहिए? तो हम शुरू करते हैं इसके लिए suppose that if we associate a normal plane wave, and normal plane wave equation is what? That is y equal to a sin omega t minus kx to the matter or object. Then what will happen? Right? And if this matter wave is associated with that particle or matter or object, then velocity of this matter wave should be equal to or must be equal to that matter or that object or that particle. तो यहां जो भी द्रव्य तरंग हम एसोसिएटेड करने वाले हैं उसका वेग वही होना चाहिए जो कि पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का वेग होता है। तो देखते हैं कि ऐसा होता है क्या यहां पर। तो सपोज दैट वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ द वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। इस वेव की जो वेलोसिटी है उसको मैंने नाम दिया है vp, फेज वेलोसिटी। राइट? एंड व्हाट इज दिस vp is omega by k, and I can also write it as 2 pi nu upon 2 pi by lambda, that is what? Mu times lambda. A obvious relation we already know from the school physics. Okay, so to find out this vp means the velocity of the wave or the matter wave associated with the particle or object. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी है
इसकी वैल्यू निकाल लें और यदि इस वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास वीपी आ जाएगा। तो यदि इस तरह की कोई वेव एसोसिएटेड करते हैं तो उसके लिए फेज वेलोसिटी या उस मैटर वेव की वेलोसिटी क्या आती है, ये हम यहां पर ट्राई कर रहे हैं। तो लैम्डा के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव द डी ब्रोगली रिलेशन विच प्रोवाइड अस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर वेव्स। तो ये लैम्डा इक्वल टू इज व्हाट, h by p, and p is what, gamma m naught v. What is this gamma? Gamma is a factor we know from the special theory of relativity. What is this m naught? M naught is rest mass of object. So this we all know from the de Broglie relation. What about the frequency? So for getting the frequency of the matter wave, we take the quantum physics as a helping tool. So we know that E equal to h nu, and this energy must be equal to gamma m naught c square, the total energy of the particle. So here nu is what, gamma m naught c square divided by h. So from here lambda is what, gamma m naught v. So by using the frequency and wavelength for the matter waves in this relation of the phase velocity or the velocity of the matter wave as we took for this particular plane wave. So Vp equal to gamma m naught c square divided by h. Take here h by p, h upon gamma m naught v. Okay, so gamma m naught c square divided by h, h is Planck's constant, and multiplied by the h Planck's constant divided by gamma m naught v square. So gamma m naught, say gamma m naught cancel out, h say h. So what will be it? Phase velocity is c square by v, right? So phase velocity turns out to be c square by v, and v is what? V is the velocity of object or velocity of particle. And from the special theory of relativity we already know that any particle cannot move faster than light. जो सेकेंड पोस्टुलेट है STR का वो क्या बताता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइट ही क्यों नहीं हो, वो प्रकाश के वेग c जो कि मुक्त आकाश में है, इन फ्री स्पेस में है, उससे फास्ट नहीं चल सकता। इसका मतलब यहां पर है कि वेलोसिटी of particle is always less than velocity of light in free space. तो इसका मतलब ये निकला यहां पर, मैं यहां करता हूं इसको काम, थोड़ा साइड बचा के रखते हैं। इसका मतलब निकला कि Vp जो हमारे पास फेज वेलोसिटी आई, जो हमने माना कि उस वेव की, जो मैटर वेव है उसकी वेलोसिटी है, तो ये निकल के आई हमारे पास c स्क्वायर बाई वी, और यहां हमारे पास है कि v इज लेस देन c। इसका मतलब है कि Vp इज ग्रेटर देन c। इट्स सरप्राइजिंग, एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अभी तो हमने कहा कि कोई भी वेव, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग से गतिमान नहीं हो सकता, और हमने देखा कि यदि हम इस प्रकार की एक प्लेन वेव, जो कि हमारे वेव कंसेप्ट में हमने स्कूलिंग में पढ़ा है कि जो वेव्स होती है नॉर्मली आपने इसी रूप में देखी होगी, चाहे वो वेव स्ट्रिंग में हो, चाहे वो लाइट वेव हो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में। यदि इस प्रकार की एक वेव यदि हम मैटर के साथ एसोसिएटेड कर देते हैं, या यूं कहो कि इसी को आप मैटर वेव्स मान लेते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आता है कि उस मैटर वेव की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो c से ज्यादा होनी चाहिए। और हमने क्या कहा, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग है और अनएक्सपेक्टेड है, हमने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। एंड इट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका मतलब यहां ये निकला, ये कंक्लूजन ये निकला कि वी कैन नॉट एसोसिएटेड दिस काइंड ऑफ द प्लेन वेव्स विद आवर मैटर। यदि हमें मैटर वेव्स बनाना है तो हमारे पास अभी
जो वेव्स का बेसिक आइडियाज है वहां की यदि डायरेक्ट प्लेन वेव एसोसिएटेड करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और एसोसिएटेड करना पड़ेगा। हमें कुछ इसके लिए वेव्स के लिए या उस वेव्स की शेप के लिए कुछ और आइडियाज सोचने पड़ेंगे। तो अभी जो हमने प्लेन वेव ली y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके साथ क्या दिक्कत है? हमने देखा कि ये लेने पर हमारे पास अनएक्सपेक्टेड और अनफिजिकल रिजल्ट आते हैं। तो इसके साथ दिक्कत क्या है? इसके साथ दिक्कत ये है कि इस वेव का ये जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्लेन वेव इज फिक्स थ्रू आउट द स्पेस। कहीं भी जहां पर आप इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा ही क्या रहेगा? यही रहेगा। दूसरा क्या है कि ये एक कंटिन्यूअस वेव है, वेव ट्रेन बोल सकते हैं इसको, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये कंटिन्यूअस वेव है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा करेंगे? साइनसोइडल फंक्शन है, साइनसोइडल फंक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं? ये लगातार चल रहा है। अब देखिए इसमें ये सब जगह इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? सेम है और वो ए है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। कैसे प्रॉब्लम्स हैं? यदि मैटर है तो मैटर तो कहीं लोकलाइज्ड होगा। हमने पहले ही बात किया कि मैटर क्या होगा? पार्टिकल्स क्या होंगे? लोकलाइज्ड इन स्पेस रहेंगे। तो यदि वो मैटर यदि लोकलाइज्ड इन स्पेस है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक स्प्रेड कैसे हो सकती है? तो ये एक फिजिकल रिजल्ट नहीं है। दूसरा, यदि मैटर कहीं लोकलाइज्ड है तो इसका मतलब यह है कि मैक्स बोर्न के प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उस स्पेस के अंदर जहां पर मैटर लोकलाइज्ड है उस मैटर के उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और जहां पर मैटर या पार्टिकल लोकलाइज्ड नहीं है, जहां उसके पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए। तो यहां से मैक्स बोर्न के प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से वी फाइंड ए आइडिया अबाउट द शेप एंड नेचर ऑफ द मैटर वेव्स, कि हमारे पास अब ये जो मैटर वेव्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो लोकलाइज्ड हो। देखिए आप, बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। मैटर वेव्स वेव्स नाम दे रहे हैं फिर भी उनको लोकलाइज्ड कह रहे हैं। यस, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं। दूसरा चीज, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्योंकि प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका एम्पलीट्यूड वहां ज्यादा होना चाहिए जहां पर पार्टिकल पाया जाता है। तो इस प्रकार की वेव्स क्या हो सकती है या कैसी हो सकती है? तो मैं उसको यहां पर ड्रॉ करता हूं। इस प्रकार की वेव्स ऐसी होनी चाहिए। यदि यहां पार्टिकल है तो कुछ ऐसी वेव्स हमारे पास होनी चाहिए जहां इसका एम्पलीट्यूड क्या है? यदि पार्टिकल यदि यहां पाया जा रहा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसका। यदि एम्पलीट्यूड साई ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मॉड साई स्क्वायर जो होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो भी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही है। और ये क्या है? स्पेस के अंदर लोकलाइज्ड है। इसके बाहर क्या है? कोई वेव नहीं है। मैटर वेव्स का कोई जो हिस्सा है वो इस तरफ के स्पेस में और इस तरफ के स्पेस में नहीं है। यानी कि यहां पर साई परफेक्टली जीरो, यहां साई परफेक्टली जीरो, और केवल इस छोटे से स्पेस के अंदर ही साई का कुछ इस तरह से वेरिएशन हो रहा है। इसे बोलते हैं वेव पैकेट। और इसे बोलते हैं वेव ग्रुप। पैकेट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसलिए इसका नाम पैकेट है। वेव ग्रुप क्यों बोलते हैं? ये हमने हमारे क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट से बोरो किया है। कैसे किया है उसको देखते हैं। तो हमारे पास, इसको मैं इधर बना देता हूं।
इस तरह का वेव ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं? सवाल हमारे पास ये आता है। ये पता लग गया कि इस तरह का शेप जो है मैटर वेव्स का होना चाहिए, लेकिन इस तरह का वेव ग्रुप बनाएंगे कैसे? इसके लिए हम क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में जो साउंड्स हमने पढ़ी है या साउंड वेव्स हमने पढ़ी है, वहां पर आपने एक वर्ड सुना होगा, बीट्स। बीट्स क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट साउंड वेव्स ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी से अलग अलग साउंड वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, यदि आप उनको अध्यारोपित कराते हो तो आपको जो है वो बीट्स मिलते हैं। तो यहां से ये आइडिया आता है, और वो बीट्स कैसे बनते हैं? ठीक इसी प्रकार बनते हैं। तो यदि डिफरेंट वेव को सुपरपोज कराते हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ही अलग हो, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट बाय स्मॉल अमाउंट, और उनको ओवरलैप कराते हैं, तो आपको इस प्रकार का ये मिलता है। ये हमने कहां देखा है? साउंड वेव्स के एग्जांपल में हमने इस तरह का देख रखा है। तो यहां से हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का हमें यहां कैसे मिल सकता है। सो ए वेव ग्रुप, यहां हमने क्या उससे आइडिया लिया? सो ए वेव ग्रुप कैन बी मैथमेटिकली described by the superposition of individual waves of different frequencies or wavelengths whose interference with one another gives us matter waves. Whose amplitude varies in space. तो जो एक प्लेन वेव है उसका एम्पलीट्यूड तो स्पेस के अंदर सेम रहता है, लेकिन जो वेव ग्रुप है या जो मैटर वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? उनका एम्पलीट्यूड वेरिंग होना चाहिए स्पेस के साथ में। यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, और इस वेव ग्रुप के बाहर बिल्कुल जीरो है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वेव का जो वेव फंक्शन है उसको हमने इनडायरेक्टली पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी से रिलेट किया था। तो यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और कम है, और इस ग्रुप से बाहर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो हमने यहाँ लिखा है कि ये जो वेव ग्रुप इस प्रकार का है वो मैथमेटिकली हमें आइडिया देता है कि इस प्रकार का वेव ग्रुप जो है हम डिफरेंट वेव्स से जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है उनको यदि सुपरपोज कराते हैं तो हमें इस प्रकार का वेव ग्रुप मिलता है। तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। अब साउंड वेव के एग्जाम्पल से हमने देखा कि उसमें जिस प्रकार बीट बनती है डिफरेंट साउंड वेव्स के सुपरपोजिशन से, वो एक वेव ग्रुप ही होता है। तो उस प्रकार यदि हम यहाँ पर दो डिफरेंट वेव का एग्जाम्पल लेकर और उनका सुपरपोजिशन कराकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, उससे हमारे वेव ग्रुप की जो शेप है उसकी आइडियाज और क्लियर होंगे। तो हमने यहाँ पर दो वेव्स ली, y1 और y2। इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, एम्पलीट्यूड ए ही है, लेकिन इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, वो पहली वेव से यानी कि y1 की जो वेव है उससे स्मॉल अमाउंट में चेंज है या डिफरेंट है। यहाँ पर फर्स्ट वेव के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सेकंड वेव के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा है, जहाँ पर डेल्टा ओमेगा एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है विद रेस्पेक्ट टू दिस ओमेगा, और के भी इसी प्रकार के प्लस डेल्टा के है दूसरी वेव के लिए, जहाँ पर डेल्टा के इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू दिस वेव नंबर ऑफ वेव फर्स्ट। इन दोनों का सुपरपोजिशन कराते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हमने जो स्कूल फिजिक्स में देखा है कि सुपरपोजिशन कैसे कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आया y इक्वल टू a
कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल्टा के टाइम्स एक्स। ये फॉर्मूला कैसा हो गया? cos a प्लस cos b जैसा फॉर्मूला। और cos a प्लस cos b क्या होता है? cos a प्लस cos b मैथमेटिक्स की ट्रिगोनोमेट्रिक जो है इक्वेशन है, उससे पता लगता है कि cos a प्लस cos b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos a माइनस b बाई 2। तो उससे हमारे पास रिजल्ट आया y इक्वल टू ट्वाइस a cos 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2 t माइनस 2k प्लस डेल्टा k अपॉन 2 x इंटू cos डेल्टा ओमेगा टाइम्स t माइनस डेल्टा k टाइम्स x डिवाइडेड बाई 2। और जो एज्यूम्शन हमने लिया उसके हिसाब से 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा क्या होना चाहिए? क्योंकि डेल्टा ओमेगा इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू दिस ओमेगा, सो 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ओमेगा। और यही बात 2k प्लस डेल्टा k पर भी लगेगी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2k। ये हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। इससे आपके पास जो सुपरपोजिशन से फाइनल वेव निकल के आई वो क्या आई? y इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x cos ओमेगा t माइनस kx। इस वेव को मैं यहां ऊपर वापस लिखता हूं। अब ये मिटा देते हैं, ये कैसे आई उसको मिटा देते हैं, फाइनल वेव पर बात करते हैं कि फाइनल वेव क्या है। इन दोनों की सुपरपोजिशन से y इक्वल टू y1 प्लस y2 से हमारे पास निकल के आया y इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा k बाई 2x इंटू cos ओमेगा t माइनस kx। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, यदि इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखिए इसका 2 पार्ट है, जो ये फाइनल रिजल्टेंट वेव आई उसके 2 पार्ट है। ये इसको कह देते हैं हम फर्स्ट पार्ट, इसको कह देते हैं हम सेकंड पार्ट। तो इन 2 पार्ट की वेव्स में जो सेकंड पार्ट है ये क्या है? ये सेम पहले वेव के साथ जो पार्ट एसोसिएटेड है उसी प्रकार का है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो द रिजल्टेंट वेव का सेकेंड पार्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वेव ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ द दीज 2 वेव्स। और जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? वो इसको मैं पूरे को ऐसे कोष्टक में बंद कर देता हूं, ब्रैकेट लगा दिया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये एक वेव है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा यहां दिखाई दे रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ये है, दिखाई दे रहा है a टाइम्स cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। यानी कि इस बार ये रिजल्टेंट वेव एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड भी टाइम और स्पेस के साथ में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और यही हम मैटर वेव के लिए चाहते थे कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो स्पेस के साथ वेरिएशन रखे, स्पेस के साथ चेंज दिखाए। अब यहां से ये 2 जो वेव्स हमें मिली हैं, इसका मतलब 2 पार्ट्स में मिली है ये वेव, इसको यदि हम ड्रॉ करें तो हमें कैसा दिखाई देगा, इस पर बात करते हैं और उनकी इंडिविजुअल की वेलोसिटी देखते हैं। यहां पर आपको फिगर में ये दोनों वेव्स दिखाई दे रही हैं। जो ऊपर वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे वाली वेव की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइंस बनाई हैं उसमें कितनी वेवलेंथ शामिल हैं। ऊपर वाली वेव के लिए 1, 2 और 2.5 वेवलेंथ शामिल हैं, जबकि नीचे वाली वेव के लिए 1, 2 एंड 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स इसमें शामिल हैं। इन दोनों का सुपरपोजिशन कराया, जो अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया, तो हमें क्या मिलता है? तो मैथमेटिकली तो हमने देखा कि इक्वेशन मिली आपको रिजल्टेंट y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos डेल्टा ओमेगा 2t माइनस डेल्टा k बाई 2x cos ओमेगा t माइनस kx। तो हमने कहा ये भी एक अपने आप में वेव है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम और स्पेस के साथ मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है। तो ये जो वेव होती है रिजल्टेंट वेव, ये यहाँ पर आपको जो तीसरे नंबर की वेव दिखाई दे रही है नीचे वाली, वैसा दिखाई देता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, सेंटर के बराबर में जो 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में जो दिखाई दे रहा है वो ही क्या है? एक वेव ग्रुप है।
अब इस वेव ग्रुप पर बात करते हैं कि इस वेव ग्रुप के लिए और इंडिविजुअल वेव के लिए जो वेलोसिटीज हैं वो क्या है। तो वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स कैन बी फाउंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटीज हैं वो कहां से निकलेगी, वो इस पार्ट से निकलेगी, क्योंकि ये इस वेव की वेलोसिटी क्या है ओमेगा बाई के, इस वेव की वेलोसिटी क्या है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन के प्लस डेल्टा के, और डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के बहुत स्मॉल है तो ऑलमोस्ट इसकी भी वेलोसिटी जो है वो ओमेगा बाई के है। तो इसे हमने नाम दिया है वीपी, फेज वेलोसिटी। वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये इक्वेशन नंबर 4। और वेलोसिटी ऑफ ग्रुप और वेव पैकेट कैन बी फाउंड फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ वाई या रिजल्टेंट वेव। तो इसे हमने नाम दिया वीजी ग्रुप को, और ये क्या है यहां पर डेल्टा ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा के बाई 2, यानी कि आपके पास आ गया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। तो ये है फेज वेलोसिटी और ये है ग्रुप वेलोसिटी। अब समझते हैं इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। फेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो फेज वेलोसिटी का मतलब कि जो वेव्स डिफरेंट वेव्स सुपरपोजिशन कर रही हैं इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या है, उसे हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। तो ये एक पर्टिकुलर वेव, दूसरी पर्टिकुलर वेव, तीसरी पर्टिकुलर वेव जो मिलकर सुपरपोजिशन करती है उनकी अलग अलग वेलोसिटीज क्या है, वो फेज वेलोसिटी है। और इन जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो मिलकर सुपरपोजिशन करके आपको एक रिजल्टेंट वेव ग्रुप देती हैं। उस वेव ग्रुप की क्या वेलोसिटी है, वो वेव ग्रुप की वेलोसिटी हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, जिसे हम वेव पैकेट की वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इन दोनों वेव्स की वजह से, जो भी हमने पीछे वीडियो में देखा था कि रिजल्टेंट वेव कैसी आई थी, रिजल्टेंट वेव ऐसी आई थी हमारे पास, तो ये इस प्रकार का कुछ मिला था हमें। फिर वापस यहां पर एक वेव ग्रुप, फिर वापस एक वेव ग्रुप, दो वेव्स के सुपरपोजिशन कराने पर। लेकिन मैटर वेव्स तो ऐसी नहीं होती। मैटर वेव्स के लिए हमने क्या कहा कि मैटर वेव्स लोकलाइज्ड होनी चाहिए। दो वेव को सुपरपोज कराने पर ये जो वेव ग्रुप बना है वो भी वेव ग्रुप यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरे स्पेस में ये वेव ग्रुप फैला हुआ है। तो ऐसा हमारा मैटर वेव्स का केस नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन तो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। तो फिर हमारा मैटर वेव्स कैसी हों, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट डिफरेंट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम एक दूसरे से अलग होती हैं उनको सुपरपोज कराते हैं। इनफाइनाइट वेव ग्रुप्स, इनफाइनाइट वेव्स जिनका वेलोसिटी क्या है, जैसे यदि एक वेव की वेलोसिटी ओमेगा नॉट है या ओमेगा ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा प्लस 2 डी ओमेगा, ओमेगा प्लस 3 डी ओमेगा, ऐसे चलता गया। और इधर भी क्या है, कम में भी ओमेगा माइनस डी ओमेगा, ओमेगा माइनस 2 डी ओमेगा, ओमेगा माइनस 3 डी ओमेगा। इसी प्रकार वेव ग्रुप के लिए भी
के प्लस डी के प्लस 2 डी के प्लस 3 डी के, और इधर भी के माइनस डी के माइनस 2 डी के माइनस 3 डी के। ये सब वेव्स हैं और ये इधर से चल रही हैं। हर एक वेव है, ओमेगा के की एक वेव है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा के प्लस डेल्टा ओमेगा की दूसरी वेव है, ये एक तीसरी वेव है, ये चौथी वेव है। ऐसी खूब सारी वेव्स को, ये इधर से 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, ऐसे खूब सारी वेव्स को जब सुपरपोजिशन कराते हैं, जिनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर है वो एक दूसरे से क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उनको यदि सुपरपोज कराते हैं तो हमारे पास प्रिसाइजली एक ही वेव ग्रुप मिलता है। बाकी सभी वेव ग्रुप्स जो है, इसके साथ जो वेव ट्रेन आ रही थी वो खत्म हो जाते हैं। तो अब हम इस फाइनली हमने ये क्वेश्चन सेटल कर दिया कि जो वेव ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और मैथमेटिकली वो हमें कैसे मिल सकता है। तो मैथमेटिकली इनफाइनाइट डिफरेंट वेव्स जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, उनको यदि सुपरपोज कराते हैं तो हमारे पास ऐसा स्पेस में एक लोकलाइज्ड वेव ग्रुप मिल जाता है। और इसकी हमने बात की कि अभी हमने जो दो वेव्स को जब सुपरपोज कराया तो फेज वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी क्या थी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। लेकिन इस बार क्या है, ये डेल्टा ओमेगा बहुत स्मॉल रूप से कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ओमेगा एंड के आर कंटिन्यूअसली वेरिंग, क्योंकि इनफाइनाइट और डिस्क्रीट नहीं है, तो इसलिए जो डी ब्रोगली वेव्स हैं या जो मैटर वेव्स हैं उनके लिए फॉर्मूला जो ग्रुप वेलोसिटी का होता है वो क्या हो जाता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ये है आपके फेज वेलोसिटी इंडिविजुअल वेव की, और ये है ग्रुप वेलोसिटी जो इन डिफरेंट इंडिविजुअल वेव्स के सुपरपोजिशन से एक ग्रुप बचा है। ये ग्रुप खुद जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो ही जो है वेलोसिटी वेव ग्रुप की वेलोसिटी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये वेव जो ग्रुप की वेलोसिटी है, अभी इससे पहले हमने बात किया कि ये जो मैटर वेव्स की वेव है वो वेव का वेलोसिटी उतना ही होना चाहिए जितना कि उस मैटर का खुद का है, यानी कि पार्टिकल जिस स्पीड से स्पेस में चल रहा हो उसके साथ एसोसिएटेड वेव भी उसी स्पीड से स्पेस में चलनी चाहिए। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल से। अब हमने एग्जाम्पल लिया इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के लिए फेज और ग्रुप वेलोसिटीज यहां पर निकाली है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और न्यू हमने कहां से लिया, ये हमने क्वांटम मैकेनिकल रिलेशन काम में लिया, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गामा एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 पाई गामा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच, वेयर गामा इज व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये STR में एक कांस्टेंट आता है ऐसा निकल के हमारे पास। और ये ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टाइम्स एच। ये हमारे पास ओमेगा आ गया। के क्या है, वेव नंबर है। वेव नंबर क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने कहाँ से निकाली, डी ब्रोगली रिलेशन से। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी और एच अपॉन गामा एम नॉट वी। अभी हमने ऐसा काम किया था तो उससे हमारे पास ये निकल के आ गया 2 पाई गामा एम नॉट वी अपॉन एच, और गामा को हमने ये इसमें चेंज करके देख लेंगे। तो हमारे पास जो फेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है वो आती है वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से और के की वैल्यू यहाँ से पुट की तो हमारे पास वीपी आया सी स्क्वायर बाई वी। और ये अभी हमने देखा कि फेज वेलोसिटी आई सी स्क्वायर बाई वी। अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रुप वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन के साथ डी ब्रोगली वेव्स अटैच्ड हैं उनकी ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां हमने देखा कि जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, वीजी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो यहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ के वेव नंबर, तो इसलिए हमने इस वीजी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के को क्या लिख लिया, डी ओमेगा अपॉन डी वी डिवाइडेड बाई डी के अपॉन डी वी, क्योंकि
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर किसके फंक्शन है? वेलोसिटी के फंक्शन है। तो इसीलिए हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पहले, और फिर वेव नंबर को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और यहाँ ये डिफरेंशिएशन अलग से हमने निकाल के लिख दिया। डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू ये रही, डी के अपॉन डी वी की वैल्यू ये रही। ये आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ से, इन फॉर्मूला से। जब इसको यहाँ पर वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के या डी ओमेगा अपॉन डी वी डिवाइडेड बाई डी के अपॉन डी वी में रखते हैं, तो हमारे पास वी जी क्या आता है? वी जी आता है वी जी इक्वल टू वी, एंड दैट वी इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि जो मैटर वेव अभी हमने कंसिडर की थी, उसकी खुद की ग्रुप वेलोसिटी कितनी है? उस मैटर के या उस पार्टिकल के, उस ऑब्जेक्ट के इक्वलेंट है और इक्वल है, यानी कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही चल रही हैं। और यही हमने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये एज्यूम्शन माना था, या ऐसा सपोज किया था कि मैटर वेव्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के साथ या उस ऑब्जेक्ट के बराबर हो। अब एक चीज यहां पर निकल के आई कि जिसका अभी हम डिस्कस करते हैं कि वीपी जो है फेज वेलोसिटी, अगेन यहां निकल के आई सी स्क्वायर बाई वी। इसका क्या या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि फेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की अभी भी कितनी आई? सी स्क्वायर बाई वी। तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए ये हमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। इट डू नॉट प्रोवाइड एनी हिंड्रेंस और एनी ऑब्स्टेकल्स टू अस इन विजुअलाइजिंग द वेव ग्रुप और मैटर वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे? क्योंकि ये जो आइडिया सुपरपोजिशन का है, ये हमने मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया साउंड वेव्स की वहां से बोरो किया है, जबकि वास्तव में ऐसी फेज वेव्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। हमारे पास जो एग्जिस्टेंस होता है या जो हम एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है? केवल मैटर वेव्स होती हैं, केवल डी ब्रोगली वेव्स होती हैं। तो ये जो फेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ निकल के आई है, इनका कोई भी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब ये जो हमने यहाँ पर बात की फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये आईआईटी जेएम में 2006 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के फॉर द गिवन टाइप ऑफ वेव्स इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। द वेव नंबर के नॉट फॉर विच द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि सवाल आपको क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है, किसमें? एंगुलर वेलोसिटी के बीच में और वेव नंबर के बीच में। फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है कि एक पर्टिकुलर जो वेव नंबर के नॉट है उसकी वैल्यू बताइए। उसके साथ शर्त क्या दे रखी है कि उस पर्टिकुलर वेव नंबर के नॉट के ऊपर फेज वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो बताइए कि उस के नॉट का वेव नंबर कितना है। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दे रखा है, आपको इसमें से बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या बराबर भी हो सकती है। देखिए, जनरली बात करें तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में तीनों संबंध हो सकते हैं। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, तो तीनों संबंध हो सकते हैं। क्या कि वीपी जो है बड़ा हो सकता है वीजी से, ये भी हो सकता है। वीपी जो है वो छोटा भी हो सकता है वीजी से, और वीपी जो फेज वेलोसिटी है वो बराबर भी हो सकती है वीजी के। तीनों केस होते हैं फेज वेलोसिटी के लिए, तीनों केस वैलिड हैं कि फेज वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और ग्रुप वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर जो आपको केस दे रखा है वो क्या है कि वैसा वेव नंबर निकालना है जिसके लिए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बिठाना है कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा होता है, कम होता है। डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या दे रखा है। ओके, तो हमारे पास क्या है, इस रिलेशन से हमें निकालना क्या है कि 4 के नॉट वीपी इक्वल टू फेज वेलोसिटी इक्वल टू वीजी। और वीपी क्या होता है और वीजी क्या होता है? वीजी इज व्हाट? डी ओमेगा अपॉन डी के।
तो पहले तो हमें डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू निकालनी है। तो ये रिलेशन दे रखा है, इससे आप आसानी से इस डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू निकाल लेते हैं। रिलेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। तो यहाँ से क्या आया, ट्वाइस ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के 3 टाइम्स बीटा के स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकल गई डी ओमेगा अपॉन डी के की। तो डी ओमेगा अपॉन डी के इज वॉट, अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा। और हमें ये ग्रुप वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, के नॉट के ऊपर निकालनी है। तो इसके लिए हमने इसको लिख लिया डी ओमेगा अपॉन डी के एट ए पर्टिकुलर के इक्वल टू के नॉट। ये क्या आ गई, अल्फा प्लस 3 बीटा के नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये ओमेगा भी किस में आएगा, के नॉट की टर्म्स में हम लिख लेंगे। और वीपी फेज वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी इज व्हाट, ओमेगा बाई के नॉट, क्योंकि के नॉट के ऊपर पूछा है आपसे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं वीपी इक्वल टू वीजी के लिए। तो वीपी इक्वल टू वीजी के लिए इनको इक्वेट करते हैं। यहां पर अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के नॉट इक्वल टू ओमेगा बाई के नॉट। ये हो गया वीजी इक्वल टू वीपी। और जो के नॉट की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो इससे क्या आ गया आपके पास, के नॉट टाइम्स अल्फा प्लस 3 बीटा के नॉट स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसे ये लिख लेते हैं यहाँ पर, के नॉट टाइम्स अल्फा प्लस 3 बीटा के नॉट स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा के नॉट प्लस बीटा के नॉट क्यूब। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटीज कहाँ है, हमने कहा ओमेगा को किसकी टर्म्स में लिखना है, के नॉट की टर्म्स में लिखना है। तो इसको के नॉट की टर्म्स में लिख लिया। तो ये के नॉट तो इधर से कैंसिल आउट हो गया, अल्फा ये ट्वाइस यहाँ पर इसके कॉमन है गुणा में। तो अल्फा प्लस 3 बीटा के नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या है आपके पास, अल्फा इक्वल टू बीटा के नॉट स्क्वायर। तो ये के नॉट स्क्वायर क्या हो गया, के नॉट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा बाई बीटा। तो के नॉट की वैल्यू क्या आ गई, और ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। तो इस तरह से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में और वेव नंबर में रिलेशंस दिया जाएगा क्वेश्चंस में। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ना केवल आईआईटी जेम में बल्कि नेट जेआरएफ में और गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक बार आपका यदि बेस अच्छा हो गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। सो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू गेट द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और आप मेरा यकीन मानिए, एक बार यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लिए तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। गलतियां कहाँ करती हैं बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छा नहीं रखते, वो उनको पढ़ना नहीं चाहते बेसिक बुक्स को, रेफरेंस बुक्स को, और सीधे ही क्वेश्चंस पर टूट पड़ते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं।